Hello. This is part 2 of complex number. Today we will discuss. In part 1 we have discussed fundamentals of complex number like argument, properties and properties of modulus and addition, subtraction, multiplication, division and conjugate numbers. Okay, and just about talk about the argument. Now in this part we will discuss complex number, cube root unity and De Moivre theorem, exponential form and remaining related to the questions of topics and PYQ also some. Okay, so without wasting of any time, we will move on a class lectures. This is a one question. What is the meaning of cube root unity? First topic is that what is the meaning of cube root unity? Suppose z equals to 1, I have considered. So that means z is a real number, that is a purely real number, that answer is 1. If you take a cube both the side or apply the फॉर्मूला, इसके 3 रूट्स आएंगे, 1 आएगा, ओमेगा आएगा और ओमेगा उसके आएगा. That all 3 roots will be satisfy this condition. एक बात तो ये समझो. ओके, ऐसे कि तुमने समझते होगे ना 3 रूट्स कितने होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा. बट क्यूब रूट यूनिटी में स्पेसिफाई कर दिया हमने 1 और ओमेगा उसके, थोड़ा जनरलाइज कर दिया इसको और कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग एल्स. सो 1 इज वैल्यू 1, ओमेगा वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा उसके -1 √3 आयोटा अपॉन 2 और रिलेशन बिटवीन 1 प्लस ओमेगा उसके दैट इज अ 0. ओमेगा क्यू इज अ 1, ओमेगा क्यू इज अ 1 वैल्यू. Now important things कि how will you determine the value of z. So z cube minus 1 का cube. If you open this bracket or factorize this number, so z square plus 1 plus 1. So z value will be z value of this value. We can determine the using quadratic formula, minus plus minus b square minus 4ac divided by 2a, 2 into 1. Z value will be -1 plus minus 3 डिवाइड बाई 2. तो यहाँ से Z की वैल्यू 2 आ गई, एक तो प्लस हो गई और एक वैल्यू Z की नेगेटिव आ गई. तो Z वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव वाली को ओमेगा बोलेंगे एंड नेगेटिव वैल्यू को ओमेगा उसका बोलेंगे. याद करने की ट्रिक बताता हूँ कि अगर यहाँ दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, अलग अलग है, तो आई विल राइट 1. बोथ आर द नेगेटिव नंबर, बोथ आर द सेम साइन, वी कैन यूज minus उसके. So this is a basic talk about the cube root unity. Okay, cube root unity. Now I'm moving this first question for you in front of this कि omega plus 1 upon omega value. So I will write omega plus omega, take a square root, take a LCM, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. अभी हमने जस्ट अभी एक चीज देखी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, दैट इज अ 0. तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आ गई -1, तो माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा दैट इज अ 1. नाउ टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा. तो 1 प्लस ओमेगा दैट इज अ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 हो गया ये, ओमेगा ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा की पावर स्क्वायर ओमेगा क्यू इज 1, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट इज द आंसर 0. नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा. उसी तरह जैसे किया था, रिमेनिंग क्वेश्चन अपने आप से करो, डू योरसेल्फ. इफ यू आर डाउट यू कैन आस्क मी इन अ क्लासरूम प्रोग्राम. मिलते हैं कल इस क्वेश्चन के, अगर आपको डाउट्स होते हैं तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, वी कैन मूव एन नेक्स्ट क्वेश्चन.
देखिए -1 -1. So this is next question or first question. In this question is written at that 1 minus -1 plus iota root 3 upon 2 whole power 29. -1 minus iota root 3 upon 2 whole power 29. इसका मतलब क्या हो गया? This value we can write as a omega value, and this value will write as a omega square. Now एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे आप तुम्हें देखनी पड़ेगी कि दिस इज ए ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ए ओमेगा टू द पावर 29. So every each term it will repeated to itself. It will repeated to itself. So I will divide by 3. So remainder, what is remainder will be 2. This number plus आएगा यहाँ. Okay. This number will be, so by mistake I have written the minus, this will be right value of lambda omega square. So this value will be 58. 58 completely divisible by 3 or not? No, because if you divide by 3 तो answer will be 3 बन जा 1, 3 7 जा 27. तो 1 remainder is left. That is a value of -1, because you have already know 1 plus omega square, that is a -1, है ना. So after that I will discuss that is a argument. This topic we have discussed in already in the previous lecture of part 1 complex number. If you want to gain more knowledge or detailed knowledge, then go for the part 1. Okay, just summarize here. Theta equals to alpha when z lie in a first quadrant. Theta equals to pi minus alpha, second quadrant. Theta equals to minus pi minus alpha, third quadrant. Theta equals to minus alpha, that is a fourth quadrant. Theta equals to this value, and this value. Okay, so this is a one standard logic. Or theta is an argument, or alpha value will be tan inverse absolute imaginary terms divided by real terms. Imaginary terms divided by real terms. Okay, so this is a final conclusion of this type of the data. So now talk about some polar form. Okay, polar form, very important. Polar form, that polar form, exactly meaning of polar form, a number is written in a modulus of z cos theta plus iota sin theta. That is very important polar form. Okay, so this is a, suppose for example z equals to written in a 1 plus root 3 iota. So 1 plus root 3, this is first quadrant मतलब मॉडुलस ऑफ जेड इज 2. तो देखो मॉडुलस ऑफ जेड सबका मैंने 2 ले लिया है. ऐसा इस तरह से प्लान किया है कि इसके अंदर सब कुछ सेम वैल्यू में जुटाए फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा, दैट इज 1 कॉमा रूट 3. 1 माइनस रूट 3 आयोटा, दिस वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा. तो 10 अल्फा imaginary upon real term, this is all the same because root 3 upon 1 pi by 3. So pi by 3 all are the same value. अब बात आती है कि सर आर्गुमेंट कैसा है, इसके कैसा निकालेंगे हम, कैसे करेंगे इसका आर्गुमेंट.
आर्गुमेंट निकालने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट अल्फा के बराबर ही होगा, आर्गुमेंट विल बी अल्फा इक्वल टू, और यहाँ पर आर्गुमेंट विल बी, यहाँ पर आर्गुमेंट किसके बराबर होगा, यहाँ पर आर्गुमेंट होगा इसके बराबर -5/3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी मेरी वो आएगी -π/3, क्योंकि ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने तुम्हें अभी बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होता है, थीटा इक्वल टू होता है -α, याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद ये देखो थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, π-α, यानी कि 2π/3 अगर z इक्वल टू जैसे लाई ना सेकंड क्वाड्रेंट, तो π-α या π-π/3, दैट इज 2π/3। इस तरह से मेरे आर्गुमेंट निकल गए। आफ्टर डिटरमाइन द आर्गुमेंट राइट द पोलर फॉर्म, दिस इज ए नंबर ऑफ, this is a magnitude, this is a magnitude, this is a magnitude, this is a magnitude। तो cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, cos -π/3 आयोटा साइन π/3, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, cos -2π/3 प्लस आयोटा माइनस साइन 2π/3, 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। दीज आर द पोलर फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोलर फॉर्म है। इस बात का ध्यान देंगे सब लोग कि पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। ये हमारी पोलर फॉर्म निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और समझते हैं कि कैसे पोलर फॉर्म निकालते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कैसे पोलर फॉर्म निकालते हैं, आगे देखो। पोलर फॉर्म निकालने का सम मोर क्वेश्चंस हैं, जैसे z इक्वल्स टू आयोटा प्लस √3 दिस वैल्यू। तो यहाँ पर ये तो इमेजिनरी है, यहाँ पर ये रियल है। तो पहले निकालते हैं अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा, tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजिनरी अपॉन रियल टर्म, दैट इज tan अल्फा इक्वल्स टू tan π/6। तो अल्फा इक्वल्स टू π/6। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू π/6। यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आएगा मेरा, वो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, √1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 2 ही आएगा। तो पोलर फॉर्म विल बी 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, है ना कमाल का। दिस इज ए पोलर फॉर्म, दिस इज ए पोलर फॉर्म, ओके, दिस इज अ पोलर फॉर्म। बड़ा सिंपल सा काम है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म निकालना क्यों इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। z इक्वल टू आयोटा माइनस √3। ठीक, तो देखो मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है, 2 बोलेंगे, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आएगा, वो आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/√3। तो अल्फा वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, π/6 पाई। तो पोलर फॉर्म विल बी, अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये तो देख लो एक बार। ये लाई कर रहा है -√3, 1, ये लाई कर रहा है थर्ड में, सेकंड में। सेकंड में आर्गुमेंट कैसे निकलता है, आर्गुमेंट निकलता है सेकंड के अंदर π-π/6। तो कितना आंसर आएगा, 5π/6। तो थीटा वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5π/6। ये वैल्यू बात समझ आ गई। इसका मतलब पोलर फॉर्म विल बी 2 टाइम्स cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। इस तरह से हमारी पोलर फॉर्म निकल गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हमारी पोलर फॉर्म ये हमने निकाल ली यहाँ से।
आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी बातें, ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ। ओके, नाइस। सो दिस वैल्यू, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ए कॉम्प्लेक्स नंबर -3√2 + 3√2 आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। कितना आएगा मैग्नीट्यूड? 3√2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। तो 3 3 या 9, 9 2 जा 18 प्लस 18 दैट इज 6। तो इसका आर्गुमेंट कितना निकल गया हमारा? इसका आर्गुमेंट निकल गया हमारा 6 निकल गया। नाउ ये हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो आंसर आ गया π/4। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? दिस लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड के लिए आर्गुमेंट कैसे निकलता है? पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। तो पोलर फॉर्म विल बी 6 टाइम्स cos 3π/4 plus iota sin 3π/4. These are the fundamental of complex number. This is a polar form. Okay, this is a polar form. Okay, so clear है यहाँ तक? अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट we will move. That is next is a exponent form. इस फॉर्म की हम बात कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सपोज पोलर फॉर्म रिटन इज a cos थीटा plus iota sin theta. This value we can write in a e to the power iota theta. अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है दैट वी कन्वर्ट इनटू इन दिस फॉर्मेट एंड राइट अ e to the power iota theta. जैसे कि cos 3π/4 plus iota sin 3π/4. So this is a 3π/4, this is a 3π/4. Same iota sin के साथ है, so we can write exponential form. Can write exponential form. So cos π/6 plus iota sin π/6, this is a π/6, this is a π/6, or this is a e to the power π/6 iota. Now cos π/6 minus iota sin π/6. So this value we can create the negative in the bracket. So cos π/6, cos π/6 and cos π/6. So this value will be e to the power minus iota π/6 value. This is a final value of this. This is an exponential form. तो फाइनल कंक्लूजन ये बनता है कि वेन एवर राइट इन अ cos थीटा iota sin थीटा वट एवर पावर ऑफ n, वट एवर रियल नंबर, वट एवर यू लाइक. So this number we can write e to the power I theta whole power n. So this n will multiply here e to the power n theta iota. So e to the power n theta iota. Agar if you again write this number directly here, so cos n theta plus iota sin n theta. इसका मतलब ये हुआ कि this n we can directly put in a with we can directly put with the theta value, theta value, theta. So देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स. cos π/4 plus iota sin π/4 whole power 3. So this power whole, so power on power multiply, so 3π/4. This number we can write cos 3π/4 plus iota sin 3π/4. So ऐसे भी समझ सकते हो कि this number multiply 3π/4, this number multiply this 3π/4. Again 3/4, तो 3π/24, 3π/24. Some more example. तो इस तरह से we have covered the exponential form. इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस ऑल कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके अंदर दैट वी डिस्कस इन अ क्लासरूम प्रोग्राम. So after that we will discuss all the things related to this questions, some fundamental. After that we will discuss some more questions in a classrooms.
तो मिलते हैं क्लासरूम के अंदर। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, टेक केयर।